Good morning. We'll start with the second class of environment. In this class, we'll be seeing the pollution. ठीक है, all the different types of pollution what are there. ठीक है, because so first we will see कि what exactly is your biodiversity losses and अगर आप global scale पे देखेंगे तो what are your major environmental issues are there. ठीक है, so you have major environmental issues which are plaguing the world are these. ठीक है, you have these in your notes. You have as your biodiversity loss is there. ठीक है, then you have a desertification. जब हम आगे देखेंगे तो we'll see that desertification is nothing but कि you increase the area of desert. ठीक है, कि जैसे जितना एरिया desert का अगर आज है तो over the year you will find कि this area itself is growing. ठीक है, because आप irrational आप practices कर रहे हैं of agriculture. In itself आपके जो desert की sand है it flows and it occupies nearby areas and it increases the area of deserts. ठीक है, so such process where you are converting your more arable land into a desert. ठीक है, semi arid and other lands into desert is known as your desertification. Then another important issue is your depletion of ozone layer which has almost been recovered. The next is acid rain. Okay, acid rain we'll see ki how it occurs and what are the major constituents of the acid rains. Then another aspect is oil spills. When we were seeing your marine resources we have seen this है ना, okay? In terms of oil spills किस तरीके से आपका वो impact होगा. Then the other issue is your dumping of hazardous waste. ठीक है, we'll see these today's कि किस तरीके से आपके अलग अलग waste हैं जिनको dump करने के लिए there are issues and what are various methods which are being used. ठीक है, for dumping of these hazardous waste as well as what are the various policy or as global initiatives जो साइन किए गए हैं to ensure your hazardous waste are dumped safely. ठीक है, then you have due to your greenhouse and global warming you have various issues. ठीक है, it is there in your notes. ठीक है, if you want to ठीक है, there one of the major causes we find are your pollution. ठीक है, pollution can be from your air, water, it can be done by soil है ना. Then you can see what are the various impacts it will have. ठीक है, the broad impacts because you will find these to be easy to write in your mains examination. ठीक है, because these are not associated for your prelims. ठीक है, it will be for your mains कि अगर आपका कोई environmental degradation हो रहा है तो what you see in terms of your impact on a global scale is the first is it increases the sensitivity to diseases. ठीक है, what you mean by this is कि suppose अगर आप आज के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग देखेंगे तो what global warming has done is it has increased your diseases penetration from tropical to subtropicals. ठीक है, जो diseases आपके पहले ट्रॉपिकल एरियाज में रहती थी those diseases has now moved to your subtropical level. जैसे आप डेंगू हो गया, अदर आप मॉस्किटो डिजीजेस देखेंगे they were mostly concentrated in your tropics. अब जो है they have moved to your subtropics. जैसे इंडिया and other countries which are in your subtropic latitudes you will find more and more increased cases of these diseases. The next is your genetic resistance. ठीक है, genetic resistance means कि all the plants and all the microbes and other pests अगर आप देखेंगे and all they have a genetic structure. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स एंड एवरीथिंग टू काउंटर योर पेस्ट जो आपके क्रॉप्स को दे कैन डैमेज. ओवर यूज अगर आप करते हैं तो व्हाट इट रिजल्ट्स इज कि दैट पर्टिकुलर पेस्ट विल हैव अ रेजिस्टेंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम. इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन यू विल फाइंड कि जेनेटिक रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ अगर आपको मेडिसिन दी जा रही है एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर डोज. ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन practice in India. ठीक है, you will find a lot of diseases जो आपके ऐसे one of the most famous is your MDR TB. ठीक है, उसके बाद में you have a Delhi version of TB. ठीक है, which was caused because of population in India only. ठीक है, यहाँ पे होता है कि आपको अगर दवाई दी जा रही है say for a dose of 4 days, what happens is कि people start feeling better by 3rd day or 2nd day, so they stop taking that disease. वो आपकी जो tablets हैं they stop taking that tablets. So what you find कि total आपका जो बैक्टीरिया इट इज नॉट बीइंग किल्ड. ठीक है, सो यू हैव दोज बैक्टीरियाज व्हिच रिमेन इन योर बॉडी दे विल स्लोली एंड स्लोली बिकम इम्यून टू दोज टैबलेट्स. यू विल फाइंड वो जो आप MDR TB देखते हैं इट इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB. ठीक है, जिसको हम कहते हैं इट इज जस्ट
हाँ हाँ, सो यू विल हैव सिमिलरली सच थिंग्स कि जो आपका उसकी वजह से होता है, यू विल हैव द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑन योर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, है ना. लास्ट क्लास में यू आर सीन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, ठीक है. सो किस तरीके से आपका न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो रहा है, इट कैन आइदर एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट, ठीक है. देन यू विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कि योर बायोडाइवर्सिटी विल बी डैमेज्ड, ठीक है. जैसे अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, और एल्स इफ यू आर डूइंग मोर पोल्यूशन, देन यू विल फाइंड कि मास्क क्यों पहन रहे हैं आप? आर यू वेयरिंग मास्क? It's not useful, na. We are there is a directive from WHO regarding coronavirus. It says you do not have to wear mask. और आज तो pollution level भी बहुत कम है. Last night I checked, it was 15 Noida. ठीक है. AQI के सबसे infected को पहनना है. Infected के साथ अगर आप उसकी केयर कर रहे हैं, then you have to wear. बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज कि द मास्क विच आर प्रोड्यूस्ड, द मास्क जो अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं, द लीस्ट दे कैन कवर इज योर 0.12 माइक्रोन्स, ठीक है. इतना ही तक वो कवर कर सकते हैं. इससे छोटा अगर आपका स्ट्रेन है तो दे कैन नॉट कवर दैट, एंड योर कोरोना वायरस स्ट्रेन इज 0.03 माइक्रोन, ठीक है. तो देर इज नो यूज अगर आप कोरोना के लिए पहन रहे हैं तो. इफ यू आर वेयरिंग इट फॉर योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, आप उसके PM 2.5 PM 10 के लिए पहन रहे हैं, देन इट इज यूजफुल, ठीक है. सो दैट इज द रीजन व्हाई यू विल फाइंड ऑल दीज डायरेक्टिव्स कि प्लीज डू नॉट होल्ड मास्क, ठीक है. द अदर थिंग इज कि मास्क पहनने से ज्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है. इफ यू गो एंड रीड द डायरेक्टिव, दे से इफ यू आर अप्लाइंग improper techniques to wear your mask, what happens is कि there are two types of mask in general. You will have one type of mask is for your जनरल पब्लिक, द सेकेंड इज फॉर योर सर्जन्स, ठीक है. दोनों का पर्पस अलग है, ठीक है. सो जनरल पब्लिक व्हाट दे वेयर इज टू एंश्योर कि आपके अंदर कोई बाहर से कोई चीज़ें आपके ऊपर नहीं आ रही हैं. सर्जन मास्क इज मोस्टली टू एंश्योर कि उनके अंदर से कोई भी उनका जो बैक्टीरिया, वायरसेस या कुछ भी ऐसे हैं, दोज दे शुड नॉट एंटर द पेशेंट्स बॉडी, ठीक है, व्हेन दे आर इंटरैक्टिंग या फिर जब भी वो ऑपरेशन कर रहे हैं. तो दिस इज द रीजन यू विल फाइंड सर्जन्स मास्क टू बी वेरी लूज, ठीक है. वो एकदम टाइट नहीं रहता जैसे हमारा रहता है. सो जो जनरल पब्लिक जो मास्क पहनती है, इट इज टाइट जस्ट टू एंश्योर कि देर इज अ वैक्यूम, ठीक है. जब आप एक बार पहन लेंगे तो देर शुड बी अ वैक्यूम बिटवीन योर माउथ एंड नोज एंड आउटसाइड, ठीक है. वहाँ पे आपको एक वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा. तो जब क्या होता है नॉर्मल पब्लिक के साथ कि इफ दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल वेयरिंग मास्क, तो हर बार क्या होता है, आफ्टर सम टाइम यू विल स्टार्ट टचिंग योर मास्क, ठीक है, कि सही से लगा है कि नहीं, आपको एयर नहीं आ रहा है ना, तो यू विल कीप ऑन टचिंग. तो जो पूरा पर्पस था आपका मास्क का, टू क्रिएट अ वैक्यूम, वैनिशेस, ठीक है. एंड व्हाट एल्स यू आर गिविंग इज यू आर गिविंग अ बेस फॉर वायरस टू स्टिक, ठीक है. जो वैसे शायद से आपका मूव हो जाता है वो वहीं पे स्टिक रहेगा. फिर जब आप एक बार भी रिमूव करेंगे तो इट विल इंक्रीज, ठीक है. सो दिस इज द रीजन. अगर आप वो डायरेक्टिव पढ़ेंगे, बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड शी वॉज ट्रैवलिंग टू यूरोप, ठीक है, तो शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि विच मास्क टू वेयर. देन आई सर्च्ड एंड आई फाउंड नो नीड फॉर एनी मास्क, ठीक है. और यू नीड टू डू इज यू वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, ठीक है. इट इज सेड कि द ओनली थिंग यू मस्ट डू इज कि वॉश योर हैंड्स एंड वॉश अप टू मिनिमम 20 सेकेंड्स, ठीक है. कि यू मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स टिल 20 सेकेंड्स. जो जिनको है फॉर देम इट इज एडवाइज्ड, ठीक है, कि इफ यू आर फीलिंग की, सो फॉर देम इट इज यूजफुल कि आप बाकी को वो नहीं करेंगे. दिस इज द रीजन यू फाइंड कि देयर इज होर्डिंग होने लग गई है मास्क की. पीपल हैव टू इशू डायरेक्टिव प्लीज डोंट बाई मास्क, बिकॉज देयर आर पेशेंट्स हु नीड मास्क एंड मास्क इज नॉट देयर, ठीक है. यू हैव स्टिल रिटेल में इतना इशू नहीं है. होलसेल यू आर फाइंडिंग इट टू बी वेरी डिफिकल्ट. नॉट ओनली योर टॉप कंपनीज, नो माई फ्रेंड इज देयर इन मेडिकल कंपनीज, जो सेकेंड टीयर में भी आपके जो फर्स्ट टीयर वेंडर्स हैं, दे आर ऑल्सो अनेबल टू फुलफिल द ऑर्डर्स, ठीक है. उसके नीचे की कंपनीज के पास अब वो जा रहे हैं. हाँ, तो बिकॉज इंडिया में अभी दैट होर्डिंग हैज नॉट स्टार्टेड, अभी इतना पैनिक नहीं आया है आपका.
Yeah, so you will find if you are wearing it for PM 2.5 PM 10 it is good because वो they cover those PM 2.5. लेकिन वही हम बोले थे 2 दिन से बारिश है मिला था जब जनवरी में दर्द मेरे ऑफिस से मिलता है. that is what I just told them पूरे डिस्कशन हुआ है कोरोना में कि the mask which you are wearing protects only 0.12 microns and the corona strain is 0.03 microns, so you will not be protected by wearing mask from corona. ठीक है, तो कोरोना से आप नहीं बच पाएंगे, मास्क पहन भी लेंगे, तो दिस इज अ श्योरिटी. ठीक है, दिस इज व्हाई दे आर सेइंग कि हाँ सैनिटाइजर इज जस्ट बिकॉज कि योर वॉशिंग ऑफ हैंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव आपका है वो यही आया कि कीप वॉशिंग योर हैंड्स. ठीक है, क्योंकि यू टच योर फेस एंड ऑल ओनली विथ योर हैंड्स रिपीटेडली. ठीक है, सो दे हैव टोल्ड. देयर इज दैट वीडियो, अगर आपने देखा होगा, दैट लेडी, शी इज सम हेल्थ मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, शी इज टेलिंग दैट कि प्लीज डू नॉट टच योर, है ना, फेस विथ ईयर, है ना, विथ योर हैंड. एंड व्हेन शी फिनिशेस द सेंटेंस टू टर्न ऑन द पेज शी टचेज हिज माउथ, हर माउथ ऐसे हाथ टच करके फिर पलटती हैं. so this is and you should be aware of those things. ठीक है, तो बाकी जो विल सी की अदर consequences आर की that can result into your climate change. you have like global warming की वजह से will have melting of ice caps and your weather patterns will change, which we say repeatedly. दो तरीके से चेंज होता है आपका. one is your frequency, ठीक है, and the second is the quantum. ठीक है, कि कितना स्ट्रेंथ है. ठीक है, और एल्स स्ट्रेंथ यू कैन से. तो जैसे अगर मान लीजिए पहले हमने डिस्कस किया था योर एल नीनो इवेंट इज अ रेगुलर इवेंट विच अकर्स ऑन योर से 5 years. ठीक है, रिपीटेडली. So its frequency will increase because of global warming. It will now be occurring in your 2 to 3 years. So that will be the frequency of your extreme weather events will increase as well as the quantum will increase. जैसे अगर मान लीजिए आपका mean average temperature is 30-35 degrees, so it will increase. ठीक है, आपकी गर्मी जो है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी. Then we'll start with our pollution. ठीक है, so today we'll be dealing with only pollution. I hope we cover as much as possible. ठीक है, so pollution is nothing but you add a substance to a already existing situation. ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आप देखेंगे, be it air pollution, water pollution, ठीक है, land pollution, आप किसी भी चीज़ में you are adding some other nutrients which is causing your harm. ठीक है, किसी भी तरीके से आप उसको ऐड करेंगे which either persist in these places. ठीक है, so those are termed as your pollution. ठीक है, उसी तरीके से you have a definition of your pollutants. ठीक है, we'll classify in these types and we will differentiate and we'll discuss each of them in depth. ठीक है, air pollution क्या होता है, because there has been question on all of them. ठीक है, अगर आप देखेंगे कि air pollution में you have कि उन what are the major sources of air pollution, फिर उनके accumulation से कौन सी diseases होती हैं, that has been asked. ठीक है, UPSC में. then you had water pollution में there is a concept of बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है. ठीक है, देन अदर एरियाज नॉइज पोल्यूशन से देयर वाज ए क्वेश्चन डायरेक्टली रिगार्डिंग द डेफिनेशन. ठीक है, द टेबल आई हैव मिस्ड. ठीक है, आई विल टेल यू टू राइट द टेबल. ठीक है, कि हर एक एरिया में देयर इज अ स्पेसिफिक लिमिट कि कितना डेसिबल्स तक आपका, जैसे द साइलेंस जोन इज 50 डेसिबल्स. ठीक है, तो उस तरीके से आपका देयर इज अ वैल्यू. तो इट वाज आस्क्ड कि कितना डेसिबल का आपका वैल्यू है. ठीक है, you will find कि अलग अलग तो pollution has been defined. you will find a broad level पे अगर आप देखेंगे you will see कि there is this act. tomorrow we will see all the legislations and global measures which has been taken to control your environment. ठीक है, तो one of the most important legislations in environmental protection is your Environmental Protection Act 1986. ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे 1986 is very close to your year of 1984. ठीक है, एंड 1984 वाज द ईयर जब आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, है ना. सो जस्ट टू काउंटर दिस, ठीक है, गवर्नमेंट हैज टू एनैक्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन जो आप यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, वी हैव डिस्कस द सेम हैपेंड विथ योर डिजास्टर मैनेजमेंट ऑल्सो. ठीक है, कि यू हैड 3 वेरी मेजर इंसिडेंट्स. ठीक है, उसके बाद से आप इंडिया में देखते हैं यू हैड योर 1999 साइक्लोन वाज देयर, देन यू हैड योर अर्थक्वेक. ठीक है, जो भुज में आपका आया था.
देन द थर्ड वन वाज योर सुनामी, ठीक है। जैसे ही सुनामी आपका है, यू विल सी कि देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन जिससे आपका एनडीएमए बना, उसके बाद आपका एसडीएमए एंड ऑल बना, ठीक है। यू विल सी कि दिस वाज, इसके पहले जो है यू विल सी कि बहुत अलग अलग एक्ट्स वर ऑलरेडी पास्ड, ठीक है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 में आ गया था, यू हैड देयर इज 1972 एक्ट इज देयर, ठीक है। बट अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट वाज नीडेड, ठीक है, जो पूरे एनवायरनमेंट को कवर करे, वाज डन इन 1986 जस्ट आफ्टर योर भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी का गैस वाज आस्क्ड आई गेस यूपीपीसीएस में ना, प्रीलिम्स में एमआईसी के बारे में पूछा गया था, है ना, मिथाइल एसिस्टेट साइनेट इज देयर, इट इज नॉट साइनाइड, साइनेट NATE, मिथाइल एसिसाइनेट, ठीक है। देन व्हेन विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, इज योर एयर पोल्यूशन। जैसे हमने नॉर्मल पोल्यूशन में डिफाइन किया था, इट इज जस्ट कि देयर इज अ presence of all these particles, be it solid, liquid and gases, ठीक है, in the atmosphere, ठीक है, which will cause directly or indirectly, which can cause a interference in your normal, क्या कहते हैं, लाइफस्टाइल और नॉर्मल वर्किंग, ठीक है। अगर आपके और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आप जो देखेंगे, इट इज इंटरफेयरिंग, इट इज कॉल्ड एज योर एयर पोल्यूशन, ठीक है। देन यू विल फाइंड कि जो मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन आएगा, इट विल बी caused by your burning, ठीक है। You burn your fossil fuel, उसी से जो आपको मैक्सिमम जो आपको एयर पोल्यूशन जो दिखता है। एयर पोल्यूशन वाज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ योर दिल्लीज एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो देयर वाज अ मेंस क्वेश्चन रिगार्डिंग योर एयर पोल्यूशन, ठीक है, कि क्या क्या मेजर्स हैं जो लिए जा रहे हैं, ठीक है। इट वाज मोर एसोसिएटेड विद लास्ट ईयर जब बहुत ज़्यादा इशू हुआ था इन 2018, ठीक है। तो 2018 में देयर वाज दिस मेंस क्वेश्चन, ठीक है। तो विल सी रिगार्डिंग ऑल ऑफ दीज एक एक करके। तो मोस्टली जो आप जो देखेंगे कि योर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ना, तो योर फॉसिल फ्यूल्स हैज फ्यू इंपॉर्टेंट वो मिनरल्स, ठीक है, या फिर आप एलिमेंट्स कह सकते हैं उसमें जो प्रेजेंट होते हैं। जब आप उनको बर्न करते हैं, दोज ओनली विल कंबाइन विद ऑक्सीजन जब आप बर्न कर रहे हैं, एंड दोज कॉम्बिनेशन ओनली विल रिजल्ट ऑक्साइड्स ऑफ दोज, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन हो जाएगा आपका, योर नाइट्रोजन मोस्टली इज कि आपका एयर इटसेल्फ हैज नाइट्रोजन, है ना। Then you have sulfur. Sulfur is added to your fuel. I'll tell you कि why the sulfur is exactly added. ठीक है, you will find the sulfur is one of the major things which has been changed in your BS4 to BS6. ठीक है, जो हम BS4 fuel और BS6 fuel की बात कर रहे हैं, automobiles की बात कर रहे हैं, you will find one of the major changes is seen in your sulfur. जो सबसे ज़्यादा drastic change आएगा आपका वो sulfur में आएगा. We'll see कि जब हम उसको देखेंगे तो why sulfur is added and what purpose actually it solves. ठीक है, नॉकिंग पता है किसी को, नॉकिंग ऑफ इंजन्स, एंटी नॉकिंग, ठीक है। तो इट इज जस्ट एडेड टू इंश्योर कि आपका नॉकिंग ऑफ इंजन जो है वो ठीक होगा, ठीक है। विल डिस्कस दैट। द नेक्स्ट इज की वॉट एवर दीज गैसेज आर रिलीज, जैसे NOx हो जाएगा एंड SO2 हो जाएगा, तो ये जो गैसेज रिलीज होती हैं दे रिएक्ट विथ योर वाटर, ठीक है। एंड व्हेन रिएक्टिंग विथ वाटर दे आइदर फॉर्म योर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉल, ठीक है। तो उस तरीके से जब वो नीचे गिरती हैं, यू विल फाइंड कि इट कॉजेस हार्म टू योर मॉन्यूमेंट्स हो जाएगा, बिल्डिंग्स हो जाएगा, योर क्रॉप्स हो जाएगा, ठीक है, सबको जो है इट कॉजेस हार्म। सो सच टाइप ऑफ रेन इज टर्म्ड एज योर एसिड रेन, ठीक है। जिससे जो आप जो देखते हैं इट इज कॉल्ड ऑल्सो एज योर मार्बल कैंसर विच वॉज विटनेस्ड इन योर ताजमहल, ठीक है। दिस वॉज इन न्यूज जस्ट बिकॉज की यू हैड टू अप्लाई अ पैक टू ताजमहल बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वॉज अराइविंग। जैसे हम लोग करते हैं ना चारा के ऊपर, यू अप्लाई अ फेस पैक, you have to apply a face pack on Taj Mahal. हाँ, हम ब्रिटिश पे इल्जाम लगा रहे हैं, ब्रिटिश ने किया, ब्रिटिश तो लेके भी गए हैं क्या इसमें से जो एम्बेडेड मार्कर थे या फिर हाँ नहीं it is mostly associated with that कि आपका deposition is coming from those, ठीक है। The another important constituent of your air pollution is your CFCs, ठीक है। Chlorofluorocarbons we will see, almost we have eliminated your CFCs, ठीक है। You will see कि there is that protocol, ठीक है, Montreal protocol is there, ठीक है। तो Montreal protocol में we will see कि there has been now a marked shift. 2016 में there was an amendment, we will see that, ठीक है। It is known as your Kigali agreement, ठीक है। Kigali agreement और Kigali amendment will be there in 2016. What it has done is कि CFCs तो we have phased out completely. Now the target has shifted to your HFCs,
ठीक है, इट वाज योर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाउ इट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आल्सो, दे आर ट्राइंग टू फेज आउट, ठीक है। तो योर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज ऑलवेज ऑन योर डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ठीक है, कि ओजोन को किस किस मटेरियल से आपका जो खतरा हो सकता है ना। तो नाउ द agreement was signed in 2016 and they have a target of 2050 for complete elimination of your HFCs, ठीक है, कि 2050 तक। I'll show you that when we'll be seeing your ozone and everything else, ठीक है, कि जब हम बाकी चीज़ें देखेंगे तो we'll see that। हाँ हाँ, आप कर सकते हैं। The only thing is कि there is only one treaty which has been successful। This is only your Montreal Protocol which is successful treaty in terms of your environmental protection। और कोई भी treaty ऐसी नहीं है कि we have seen your good result कि जहाँ पे आपको international collaboration मिला है and you have seen the results on ground, ठीक है। तो ओजोन के लिए जब हमने किया था 1979 it was done around, ठीक है, then you will see कि अभी तक आके we have almost repaired the ozone, जो जितना ओजोन का आपका डैमेज था we have almost completely repaired that hole। तो इसीलिए जो है you will see कि जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं यू ट्राई टू ऐड इन दैट, ठीक है, कि उसी में कर लेते हैं बिकॉज देर इज अ कमिटमेंट। तो नेशंस विल बी मोर कि पैक, हाँ, तो दे हैव रिड्यूस्ड योर CFCs ना। आई विल शो यू द डायग्राम की CFC से कैसे होता है ना। यू मस्ट हैव सीन दैट कि द क्लोरीन, सिंगल क्लोरीन एटम इज देयर, इट कंबाइंस विथ योर ऑक्सीजन, है ना, तो वो ClO फॉर्म कर देते हैं एंड देन ClO विल रिएक्ट एंड गिव टू योर ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल। तो उस तरीके से आप जो देखते हैं कि यूवी की रेडिएशंस जो आपकी अब्जॉर्ब करने वाली थी ओजोन, योर ओजोन विल गेट डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ CFCs। तो इसका जो क्लोरीन है दे विल कीप ऑन डिप्लीटिंग द ओजोन, ठीक है। देन अनदर इज योर दिस कंबशन ऑफ योर फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। एंड वी हैव डिस्कस्ड इज योर स्मॉग। स्मॉग का दो टाइप याद है, वन वॉज योर लंडन स्मॉग एंड वन वॉज योर, अच्छा हाँ, दूसरा क्या था, बोथ हैड टू डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। वन वॉज कॉज्ड बाय योर इंडस्ट्रीज, ठीक है, कि जहाँ पे भी आपको स्मॉग इंडस्ट्रीज से दिखेगा यू विल कॉल इट टू बी योर लंडन स्मॉग। एंड सेकेंड वन कॉज्ड बाय योर वेहिकुलर एमिशंस, ठीक है, तो विल कॉल इट एज योर वेहिकुलर एमिशंस, ठीक है। तो इट इज आई गेस वॉज LA स्मॉग, आई गेस इट वॉज नॉन दिस, है ना। तो अगर आप वो देखेंगे, सो दिस इज हाउ एक्चुअली योर ओजोन रिएक्ट्स इन योर स्ट्रेटोस्फीयर। जब आपके सनलाइट आती है तो हाउ इट डज इज कि दिस नेसेंट ऑक्सीजन जो आपका होता है इट ब्रेक्स एंड इट एब्जॉर्ब्स योर UV, ठीक है, एंड दिस इज अ रिसाइक्लेबल प्रोसेस। वो O2 से वापस से O3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि योर UV इज एब्जॉर्ब्ड बाय योर ओजोन ऑन टॉप, ठीक है। इस तरीके से आपका जो वो प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड देन दिस इज हाउ योर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक्चुअली डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कि आपका जो प्रेजेंस ऑफ दिस CFCs आर देयर, व्हाट इट डज इज के इन टर्म्स ऑफ जब UV लाइट पड़ती है इट ब्रेक्स योर ओजोन, ठीक है, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ClO और योर क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसकी वजह से आपकी जो ओजोन लेयर है इट गेट्स ऑन डिप्लीटिंग, ठीक है। सो ये रीज़न था, दिस वाज द रीज़न व्हाई योर यूज़ ऑफ CFCs जो हमारे रेफ्रिजरेशंस में बहुत होता था, विल सी कि वो पूरा का पूरा बैन कर दिया गया था। यू विल नॉट फाइंड एनी ऑफ योर CFCs टू बी प्रेजेंट नाउ इन योर रेफ्रिजरेटर्स। अब किसी भी एयर कंडीशनिंग हो गया या किसी भी चीज़ में यू विल नॉट फाइंड CFCs। HFCs का रोल है नाउ दे आर स्लोली फेजिंग आउट योर HFCs ऑल्सो, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स देखेंगे आप, स्पेशली योर एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, तो विल क्लासिफाई एज योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का जो मेन डिफरेंस आपको जो दिखेगा विल बी ओनली दिस की प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स दे विल पॉल्यूट इन द फॉर्म विच देमसेल्व्स दे आर प्रेजेंट इन, ठीक है, कि जिस तरीके से वो प्रेजेंट है वो अपने उसी फॉर्म में आपको पॉल्यूट करेंगे। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स विल बी दोज की विच विल नाउ बी रिएक्टिंग विद समथिंग एल्स। जैसे अगर आप मान लीजिए कि देयर इज अ PAN या उस तरीके, हाँ, तो उस तरीके से दे विल हैव टू रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है, टू फॉर्म योर एसिड रेन, ठीक है। तो इन देमसेल्व्स दे विल नॉट बी कॉजिंग योर एनी हार्म, ठीक है। अगर वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में अगर वो हार्म कॉज कर रहे हैं तो विल से इट टू बी योर प्राइमरी, ठीक है, एंड देन यू विल हैव सेकेंडरी। सिमिलरली आप उसको देखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव।
तो क्वांटिटेटिव जब पॉल्यूटेंट हम डिस्कस करेंगे तो क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट विल बी दोज पॉल्यूटेंट्स जो ऑलरेडी दे आर एग्जिस्टिंग इन आवर नेचर, ठीक है, बट दे आर इन योर लिमिटेड क्वांटिटी. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जांपल, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड इन योर लिमिटेड क्वांटिटी इज नॉट अ पॉल्यूटेंट, ठीक है. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली देखते हैं तो इट इज नॉट अ पॉल्यूटेंट अगर वो लिमिटेड क्वांटिटी में. इफ इट एक्सीड्स दैट क्वांटिटी देन इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज योर पॉल्यूटेंट, ठीक है. सो सच टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स जो आपके दे आर prevalent and they are available in your atmosphere naturally, it is termed as your quantitative pollutants, and qualitative pollutants are those which are added to your atmosphere by humans, ठीक है, कि आप जो है उसको ऐड कर रहे हैं because of which you will see कि there is those pollution, ठीक है. तो now we will see in depth, ठीक है. बेसिक आपको डिफरेंस पता, हाँ, कि we are adding which are present है ना, बस आपका जो होगा, ठीक है. सो primary pollutants, we have discussed this कि your primary pollutants will be those which are persistent in the form which they are added, ठीक है, कि जिस फॉर्म में वो है उसी फॉर्म पे वो रहेंगे and they will cause damage to your environment in the same form. Whereas secondary में आप जो देखेंगे तो they will be formed by interaction of your primary pollutants, ठीक है, और उस interaction की वजह से जो है आप देखेंगे कि it is causing that damage. The next one was your क्वांटिटेटिव में वही था कि दे अकर इन योर नेचर एंड दे ओनली बिकम पॉल्यूटेंट जब उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मिनिमम लिमिट से आपका ज़्यादा हो जाएगा. द नेक्स्ट इज योर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की दीज डू नॉट अकर इन नेचर एंड इट इज़ एडेड बाय योर ह्यूमंस, ठीक है. अब जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से जो जिन पॉल्यूटेंट्स को ऐड करेंगे दे विल बी टर्म्ड एज योर क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, ठीक है. द नेक्स्ट इज योर पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, ठीक है. पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स की वही चीज़ है जो विल सी कि जो पार्टिकुलेट मैटर आप देखते हैं PM 2.5 PM 10, तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स आर ऑल दोज मैटर्स विच इज सस्पेंडेड इन एयर, ठीक है, कि जो भी छोटे छोटे मैटर्स आपके जो एयर में सस्पेंड होंगे यू विल सी देयर इज दिस डेफिनेशन, ठीक है, कि वाई PM 10 इज देयर, वाई PM 2.5 इज देयर इज बिकॉज ऑफ दिस. अगर PM 10 से बड़ा रहता है सो इट कैन नॉट फ्लोट नाउ इन एयर, इट विल सबसाइड डाउन, ठीक है. तो 10 से जो छोटा होगा वही आपका एयर में मूव करेगा, सो दैट ओनली विल कॉज मोर पॉल्यूशन. सो दिस इज द रीजन यू विल सी इन AQI इंडेक्स यू हैव PM 10 एंड देन PM 2.5 विल बी वन विच विल बी इनहेल्ड इन आवर लंग्स एंड इट कैन कॉज योर लंग कैंसर एंड अदर डिजीजेस, ठीक है. रेस्पिरेटरी डिजीजेस आपको जो दिखेगा इट विल बी बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है. तो PM 2.5 इसलिए आपका देखा जाता है. द AQI इंडेक्स में हम देखेंगे आगे कि यू हैव फोकस ऑन 8 pollutants, ठीक है. It was also asked, ठीक है, but it was mostly because कि the last year only your AQI index was released, तो maybe that was the reason. And the next year it was asked was 2018 के बाद वाला prelims when it was very much in news, ठीक है. हाँ, I guess 18 और 19 इन दोनों में से कोई सी एक prelims में it was asked again. 19 में तो पूछा था कि burning of crop और biomass will result into which of the following. Option was CO2, CO, methane and yes, sulfur dioxide. ठीक है. तो यू हैव दिस पार्टिकुलेट, ठीक है. तो वी हैव सीन की तो जो भी 2.5 से आपका कम होता है इट कॉजेज मोस्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी डिजीजेस. दिस इज द रीजन यू विल फाइंड कि आपका जो PM 2.5 जो है वो मेंशन होता है. द नेक्स्ट इज योर, नाउ विल सी कि और अब एक एक जो कंपोनेंट्स हैं वो आपका कौन कौन पोल्यूट करते हैं. द फर्स्ट इज योर फ्लाई ऐश, ठीक है. फ्लाई ऐश यू मस्ट हैव हर्ड कि जब भी हम कार्बन को इफ यू आर बर्निंग, ठीक है, सो अलोंग विद द कार्बन यू हैव few elements which also move up in the air, ठीक है. there is a difference between a fly ash and a down ash, ठीक है. ये दोनों को मिला के is your coal ash, ठीक है. you say it is your bottom ash, ठीक है. जैसे आप मान लीजिए this is a piece of wood and I am burning this, ठीक है. तो अगर आप इसको बर्न कर रहे हैं तो in air again you will see there are fine particles of burnt fuel, ठीक है. that is known as fly ash जो आपका ऊपर जा रहा है. and then there are also some particles which are left over which is known as your bottom ash. ये दोनों को मिला के we in generally call them as your coal ash, ठीक है. तो एयर पॉल्यूटेंट्स की तरह से अगर आप देखते हैं तो योर फ्लाई ऐश इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कम्स आउट ऑफ योर चिमनी, ठीक है. जो भी हम बर्न कर रहे हैं अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे आप बर्न करते हैं तो चिमनी से जो है
वी हैव सीन कि लॉट ऑफ फ्लाई ऐश वाज कमिंग आउट। तो उसी की वजह से जो है हम देखेंगे कि इट विल बी हैविंग, जो भी आपका कोल बेयरिंग स्ट्रेटास रहे ना, जो जितने भी कोल बेयरिंग रॉक्स हैं आपके, ठीक है, इट विल ऑलवेज कंटेन अ लॉट ऑफ मिनरल्स, ठीक है। इसीलिए जो बर्निंग ऑफ फ्यूल हम लोग कहते हैं, इट विल हैव योर सल्फर, ठीक है, इट विल हैव